हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो व्हाट इज एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज a pair of ovaries. After that, secondary sex organ. Secondary sex organ consists of what? Like all the ducts which helps in the conduction of gametes and the union of gametes. That means it consists of a pair of ovaries, a pair of oviduct, which is also called fallopian tube, which is also called fallopian tube. After that, uterus. This uterus consists of cervix also. After that, it consists of vagina. This consists of external genitalia, that is called vulva. External genitalia, that is called vulva. And it consists of all the accessory glands. So, all the accessory glands, यानी कि mammary gland. तो पहले हम बात करते हैं ओवरी के बारे में. सो वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी एंड दिस इज almond shaped. So ovary is almond shaped and 2 to 4 centimeter in length. This is 2 to 4 centimeter in length and almond shaped. आफ्टर दैट, अभी हवा में तो लटकी नहीं हुई है एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये अटैच्ड है टू द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ ब्रॉड लिगामेंट, अ पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट दैट इज कॉल्ड मेसोवेरियम. सो दिस इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल वॉल, सॉरी, it is attached to abdominal wall by mesothelium. क्या नाम है इसका? mesothelium. अगर तो अब अगर हम पढ़े द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, so it consists of, it is lined by a germinal epithelium which you have already studied in the animal tissues. कि ओवरी और टेस्टिस आर लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम. ये जर्मिनल एपिथेलियम कैसे होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. So if I draw the structure of ovary, so this is lined by cuboidal epithelium or germinal epithelium. और ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है, जो कंप्लीट स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ओवेरियन स्ट्रोमा. सो दिस इनर स्पेस of the ovary, that is called ovarian stroma. This ovarian stroma is divided into outer, जो उसका पेरीफेरी का पोर्शन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर का पोर्शन मेडुला. तो पेरीफेरी में कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और इनर में मेडुला. अब इस कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला में क्या क्या होता है? So in the peripheral cortex of the ovary is present developing follicles. मतलब कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर ये रेमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, ये सब कहाँ हो रहा है? ये ओवरी के पेरिफेरी या फिर उसके कॉर्टेक्स में हो रहा है. So this consists of many primary follicles. These primary follicle mature to form secondary follicle. From the secondary follicle, this forms tertiary follicle, and from the tertiary follicle, this forms mature Graafian follicle, and this Graafian follicle burst out and it release the egg. So oocyte है वो बाहर निकल जाएगा और ये रहा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल. तो जो ये रेमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, दिस विल लेटर ऑन फॉर्म अ येलो colored body that is called corpus luteum. This is corpus luteum, and after that this will degenerate and it will form a white body that is called corpus albicans. This is called corpus albicans. So primary से secondary secondary follicle,
सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये बर्स्ट हो जाएगी एंड इट विल लीड टू द ओव्यूलेशन। मतलब हमारे जो सेकेंडरी ओसाइट कहाँ मूव कर जाएगा, इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट है, ये क्या बला है, इसको हम बाद में oogenesis में पढ़ेंगे। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये पेरीफेरी में हो रहा है। तो फिर बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। इन द मेडुला blood vessels are present, connective tissues are present, smooth muscles are present, connective tissue and smooth muscles are present। और ये रहा हो गया हमारा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। Okay, so this is all about ovary। हाँ, one more thing, अभी follicle चीज क्या थी, you know the egg, you know the ova, so this egg or oocytes, they are surrounded by a mass of the cells that is derived from the ovarian stroma itself। तो ये कंप्लीट, ये जो पूरी चीज है कि ये oocyte भी है और उसके आसपास सेल्स मौजूद है, ये पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स। ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं फीमेल में बाय बर्थ। ये प्राइमरी फॉलिकल फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये मेच्योर होना शुरू करते हैं, हर महीने मेच्योर होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, टर्शरी में होगा, ग्राफियन फॉलिकल में होगा, ये बर्स्ट हो जाएगा और oocyte निकल जाएगा। इसी को ओव्यूलेशन बोला जाता है। Now we'll move to next part, that is the fallopian tube। This fallopian tube extends from ovary and it will join the uterus। So next is fallopian tube और इसी को क्या बोला जाता है, oviduct। Now what is the length of this fallopian tube? That is 10 to 12 centimeter and it is lined by what epithelium? It is lined by ciliated columnar epithelium। It is lined by ciliated columnar epithelium and it is lined by this epithelium और ये स्मूथ मसल से मिलके भी बना होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो फेलोपियन ट्यूब से एग मूव करता है, तो ये जो सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अलोंग विद द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द स्मूथ मसल्स, ये दोनों मदद करता है इन द मूवमेंट ऑफ ओवा। मतलब जो ये एग है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में मूव कर पाए, ये फेलोपियन ट्यूब की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ गैमेट। तो इट परफॉर्म्स peristaltic movement through the smooth muscle। So peristalsis of smooth muscle। Now इस फेलोपियन ट्यूब के भी तीन हिस्से होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड एस्थमस। तो ये फेलोपियन ट्यूब प्लस द यूट्रस हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम से। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा पूरा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का जो पहला हिस्सा है वो है इनफंडिबुलम। ओके, जो कि ओवरी के बहुत नजदीक में है, ओवरी से जुड़ा नहीं हुआ है, नजदीक में है। और इसके एक एंड पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है फिम्ब्रे। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको कि ऑस्टियम बोला जाता है। तो जब ओवरी अपना oocyte जो कि एग है वो रिलीज करेगा, तो वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज नहीं करेगा, वो बाहर सीलोम में रिलीज करेगा। और with the help of this fimbriae and the ostium, that oocyte will move inside the fallopian tube। So this fimbriae, in between this ostium is present, in between ostium one opening is present and through the ostium egg will move from coelomic cavity inside the fallopian tube। Now this infundibulum leads to another wider part that is called ampulla। Okay, and this ampulla leads to the narrower part that is called isthmus। अब isthmus मतलब ये जॉइनिंग है, ये फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ रहा है और कुछ नहीं। एम्पुला में क्या हो रहा है, एम्पुला में सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, दैट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस इज द
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा एग और स्पर्म का वो एम्पुला में होगा। अगर एग और स्पर्म साइमल्टेनियसली एम्पुला में रीच करते हैं तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। और ज्यादा स्पेसिफिक हो तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर। ओके, आफ्टर दैट isthmus इट विल जॉइन द यूटेरस। नाउ यूटेरस के भी तीन हिस्से हैं। जो सबसे ऊपर वाला डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे फंडस। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये है फंडस। फिर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये क्या हो गई, बॉडी। दिस इज कॉल्ड बॉडी। एंड दिस यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द नेक, जिसको की बोला जाता है सर्विक्स। तो यूट्रस हैज थ्री पार्ट्स, fundus, body, and cervix. This is the cervix, and this canal you can see, this is the cervical canal. This cervical canal is opening into the vagina. तो ये जो cervix है, ये body of the uterus वहां पे खुल रहा है, vagina में भी खुल रहा है. So the opening through which it is connecting to the body of the uterus, इसको बोला जाता है internal os और os interna को बोलते हैं os interna. While this opening is called os externa. That means the cervical canal is opening into the vagina through the os interna, and cervical canal is connecting to the body of uterus with the os interna. Are you getting? After that vagina, और ये vagina बाहर की तरफ खुलेगा with the help of vaginal orifice. Okay. So now we will write about all of these things. तो fallopian tube हो गया. वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने बोला था कि ओवरी ऐसी हवा में ही लटकी हुई है, ये मीजोवेरियम से जुड़ी हुई है, उसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब भी हवा में नहीं लटकी हुई है। ये दूसरा लिगामेंट जिसको कि मीजोसेल्पिंग्स बोलते हैं उससे जुड़ी हुई है। तो फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब इज सस्पेंडेड बाय mesosalpinx. Now we'll come to the uterus. यूट्रस को क्या बोला जाता है, हिस्ट्रा भी बोला जाता है या वूम भी बोला जाता है. सो रिमूवल ऑफ हिस्ट्रा, दिस इज आल्सो कॉल्ड हिस्ट्रेक्टमी. एक्टमी मींस रिमूवल, सो हिस्ट्रेक्टमी. नाउ इट हैज, यस, तो हमने इसके तीन पार्ट तो पढ़ लिए. ये तीन पार्ट था, ऊपर का फंडस डोम शेप्ड, दूसरा पार्ट था बॉडी बीच का, और लास्ट पार्ट था सर्विक्स. अब ये जो यूट्रस है, ऑल द थ्री थिंग्स, ये बनी किससे होती है, तो ये तीन वॉल से मिलके बनी होती है. मींस यूट्रस वॉल इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स. व्हाट आर द थ्री लेयर्स? तो वॉल ऑफ यूट्रस, तो जब से सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम. दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम. इट इज द आउटर पेरिटोनियल कवरिंग. बीच वाला हिस्सा होता है मायोमेट्रियम. बीच वाला हिस्सा है मायोमेट्रियम, एंड द इनर वन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. इनर वन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. सो जो ये पेरीमेट्रियम है, दिस इज द आउटर सेरोसा लेयर, सेरोसा. मायोमेट्रियम है, दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट स्मूथ मसल. दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट स्मूथ मसल. अब ये क्या बला है? दैट मीन्स स्मूथ मसल भी दो तरीके की होती है, दो टाइप की, सिंगल यूनिट, मल्टी यूनिट. सिंगल यूनिट में इनके बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, सो दे कैन परफॉर्म स्ट्रॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो यही जो स्मूथ मसल है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है. दिस विल अंडरगो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. तो दिस सिंगल यूनिट स्मूथ मसल undergoes wild contraction during the childbirth.
और ये जो अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, ये होती है हाईली वेस्कुलर, हाईली ग्लैंडुलर। मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम यही लेयर शेड होती है और फिर से यही लेयर बनती है, फिर शेड होती है। ठीक है। सो दिस एंडोमेट्रियम, दिस अंडरगोज cyclical changes. This undergoes cyclical changes in each menstrual cycle. Each menstrual cycle, and this is highly vascular, highly glandular. मतलब जो इम्प्लांटेशन होगा फर्टिलाइज्ड एग का, मीन्स जाइगोट का, वो इसी में होता है, इसी एंडोमेट्रियम में होता है, यही उसको कवर करता है। तो ये तो हो गया यूट्रस। और रिमूवल ऑफ यूट्रस को बोल देते हैं हम हिस्टेक्टोमी। यूट्रस के बाद आता है वेजाइना। ओके। तो ये जो वेजाइना है, ये भी फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? कंपाउंड एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, बक्कल कैविटी वेजाइना इज मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड द ट्रांजिशनल। सो दिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड, मीन्स नॉन कैरेटिनाइज्ड। वेट सरफेस है तो कैरेटिन नहीं जमा होगा इसमें, तो नॉन कैरेटिनाइज्ड, stratified and squamous epithelium, non-keratinized stratified squamous epithelium। अब जिसने भी एनिमल टिश्यू ढंग से पढ़ा होगा उसको ये पता होगा। ठीक है। नाउ दिस इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, एंड वन मोर थिंग, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड। यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होता। ओके जो भी म्यूकस आ रहा है वो सर्विक्स से आ रहा है, यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं है। सो दिस इज डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड, and this vagina along with the cervical canal, it forms the birth canal। मतलब this vagina, it receives the penis during copulation, so यहीं पे सीमन का डिपोजिशन होता है। and one more thing, that this cervical canal plus vagina, this cervical canal plus vagina, it forms the birth canal। इसी को हम birth canal बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक। नाउ ये जो वेजाना है, इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द वेजाइनल ओरिफाइस। ओके। दिस वेजाइनल ओरिफाइस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस डायफ्राम, जिसको कि क्या बोलते हैं? हाइमन। दिस इज कवर्ड बाय membranous diaphragm, that is called hymen। called hymen। अब ये जो hymen है, generally usually it tears apart during the first coitus, but it can be torn due to involvement in any sports activity or due to insertion of vaginal tampon। That's why presence or absence of hymen cannot be the reliable indicator of virginity। Very, very important. This can be asked in assertion reason. Means this is this is often torn during first coitus. During first coitus, but can be ruptured, due to insertion of what? Due to insertion of vaginal tampons or involvement in sports, active involvement in sports activities। Okay, so this can be the reason. This can be the reason. And what should be the assertion for this reason? Assertion is, that's why presence or absence of hymen, presence or absence of hymen cannot be the reliable indicator of virginity, cannot be reliable indicator of virginity।
because it is often ruptured during first coitus but can be ruptured due to presence or absence due to insertion of vaginal tampons and sports activity. So this is assertion, this is reason. Is it clear? Proper NCERT line. तो ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. अगर इसके बाहर आए तो अब हमें पढ़ना होगा वल्वा, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर. नाउ विल स्टार्ट विथ external genitalia of female, and this is also called vulva. Now we are drawing the diagram of it. हाँ, तो ये जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड mons pubis. What is mons pubis? This is the cushion of fatty tissue present in front of the pubis bone. मतलब pubis के just सामने present है mons pubis. So this is cushion of fatty tissue and it is covered by hairs. This is covered by pubic hairs. Okay. From this mons pubis runs the longitudinal fold of skin. ये दिख रहा है आपको longitudinal fold of fleshy skin, that is called labia majora. This is called labia majora. Inside the labia majora is present labia minora. A thin fold of skin that is called labia minora. Okay. ये जो लेबिया माइनोरा है, अब इसके जो लोअर पोर्शन है, ये जो जंक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोर्शे. दिस इज कॉल्ड फोर्शे. And the upper junction of the labia minora, at the upper junction of labia minora, tiny finger-like projection is present that is called clitoris. This tiny finger-like projection is called clitoris. मतलब लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कि क्लिटोरिस बोलते हैं, और इस क्लिटोरिस की बॉडी इज कवर्ड बाय प्रिप्यूस. दिस इज कवर्ड बाय प्रिप्यूस. तो एक्चुअली ये थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलर दिख रहा है पीनस से. So this clitoris also has two erectile bodies which is capable of enlargement during sexual arousal. मतलब ये homologous है penis से and it is covered by the prepuce, loose retractable fold of skin called prepuce. So body of clitoris is covered by the prepuce. अब इस labia minora के अंदर भी क्या होता है? So it covers the space that is called vestibule. इसके अंदर होता है urethral orifice and vaginal orifice. So this is called external urethral meatus. यहाँ पे खुलता है urethra. External urethral meatus. After that opens, जो ये lower portion में दिख रहा है that is called vaginal orifice. This means what? Vagina is not the part of external genitalia or vulva. ये अंदर होता है. हमको बाहर से वेजाइनल ऑरिफाइस दिख रहा है. तो वेजाइनल ऑरिफाइस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नॉट द वेजाइना इटसेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और यही वेजाइनल ऑरिफाइस, दिस इज कवर्ड बाय द थिन मेम्ब्रेनस डायफ्राम जिसको कि बोलते हैं हाइमेन. ओके. एंड दिस mons pubis, this is the cushion
of fatty tissue. Cushion of fatty tissue. Important. Lines are important. अब ये तो हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं. वो 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? One pair on the either side of external urethral meatus and another pair on the either side of vaginal opening. So this is called Bartholin's gland. This is called Bartholin's gland. और ये जो यूरेथ्रल के साइड में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड स्किन्स ग्लैंड. इनका काम क्या है? इट सिक्रीट्स द अल्कलाइन म्यूकस at the time of arousal. This secretes alkaline mucus at the time of arousal and it will add to the cervical mucus. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट बाकी सारी चीजें दी हुई है तो जरूरी है. ओके, सो यहाँ पे हो गया हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा. अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा के बाद आ जाते हैं हम मेमरी ग्लैंड्स.